morning and welcome to practical class, CBSE practical class. Today we have to take CBSE class 12 physics practical section B, where we discuss the practicals of optics and electronics. First practical of optics we discuss here will be to find out the focal length of a convex lens by plotting a graph between 1 by V and 1 by U. You can also find it out by plotting graph between U and V, but here in this class we have to discuss only when we plot between 1 by U and 1 by V. What are the apparatus used? The optical bench, convex lens, a scale, pencil, pen, nothing more than that. And theory is very simple. Focal length formula for convex lens is 1 upon f equal to 1 by v minus 1 upon u. And a graph is plotted between 1 by u and 1 by v. And then what is u and what is v? U is the distance of the object pin from the lens, and v is the distance of image pin from the lens. There are two pins. Two pins will be given. You will see actual optical arrangement. Okay, and now a straight line will come, and that straight line will be like this. That I will show how the graph will come. And the x-axis distance and the distance subtended in along x-axis will be same as that on along y-axis. Any of the distance corresponds to 1 upon f, and then we take that distance and take the inverse of that, we get f. Okay, the focal length आ गया. अब देखिए इसमें ग्राफ इस टाइप से आएगा, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर मैंने 1 by u लिया, इसको नेगेटिव आप जानते हैं, u हमेशा नेगेटिव लेते हैं. We always take u negative, therefore 1 by u is also negative, and this is 1 by v. And if your reading is correct, then this reading, this length will always be equal to this length. And in that case, either you take this length or this length, and then inverse it. वो inverse क्या देगा? Focal length. Okay. अच्छा, इससे ये arrangement देखिए क्या है? ये ऑप्टिकल बेंच में बीच में आपका लेंस रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो स्टैंड में लगा रहेगा. एक साइड का एक पिन होगा, वो ऑब्जेक्ट पिन कहेंगे. मैं यहाँ पर हमेशा डायग्राम में आपसे लेफ्ट साइड में रखा, और ये राइट साइड में दूसरा पिन होगा. ये नहीं, ये इमेज, दिस इज सेकंड पिन. ओके, एंड वी कैन सी बोथ द पिन्स फ्रॉम आउटसाइड, दे अपीयर्स टू बी डायरेक्ट. लेकिन जब लेंस के थ्रू देखते हैं तो इसका इमेज इधर उल्टा दिखता है, जिसको कि हमको सेट करना पड़ता है, नॉन पैरेलल स्टेट लाना पड़ता है. नॉन पैरेलल स्टेट मीन्स व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल इज दैट थिंग where there is a relative displacement between an object and image. If there is no relative displacement between an object and an image, then naturally we will have the state of non-parallel. हमको यहाँ पर non-parallel state ही लाना है, जिससे कि जो है इसका inverted image और ये पिन इमेज पे दोनों साथ साथ एक साथ चलना चाहिए. They must coincide with each other and they will move together like this. Once we see through the lens, तो ये डिस्टेंस आपका v हो जाएगा, ये डिस्टेंस u. तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे पोजीशन ऑफ p1, मतलब इस पिन का पोजीशन ऑफ p2, इस पिन का पोजीशन सेंटीमीटर में, पोजीशन ऑफ लेंस, इस लेंस का पोजीशन l, एंड u विल बी इक्वल टू l डिफरेंस p1. जो भी बड़ा उससे माइनस करिएगा. यहाँ पर भी जो है v इक्वल टू l डिफरेंस v2 p2, उसको भी करें. ध्यान रखें u को हमेशा नेगेटिव रखें. यहाँ पर खाली डिफरेंस निकाले, बट यहाँ पे इसको नेगेटिव ही रखना है. And then 1 by u will also be negative, 1 by v is also negative, and then we actually plot the graph. Okay. Now let us see the actual optical arrangement. The initial arrangement, when we take, this is the convex lens, it is placed in a stand or upright. This is a pin, another pin is this one. If I consider this as the first pin, this as second pin. If we consider this as first pin, then this will be second pin. Actually ये clear हो गया. और इनको ऐसे अरेंज करेंगे कि ये ऑप्टिकल बेंच सेंटर जो इस लेंस का है उससे थोड़ा ऊंचा दोनों पिन. फॉर दैट वी कैन यूज इवन अ स्केल और पेन, व्हाटएवर वी कैन टेक. अप्रोक्सीमेटली वी कैन सी इट इज मच अबव, तो इसको लेंस को थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एग्जैक्टली सी दैट यस इट इज स्लाइटली अबव द ऑप्टिकल सेंटर, and it is also slightly above the optical center. Now after that all the uprights are in the same line. वो एक ही लाइन में इनको कर लेते हैं हम लोग. एक लाइन करने के बाद हम लोग देख लिया कि सिस्टम सही है. Then
वी प्लेस इट एट एनी पॉइंट, वो यहाँ पर ही पड़ेगा, उसको वी हैव टू नोट डाउन दिस स्केल. द एंटायर सिस्टम इज ऑप्टिकल बेंच, दिस सिस्टम, एंड यू कैन सी दिस इज ऑप्टिकल बेंच. यहाँ पे स्केल लगा है, तो स्केल से इसका पोजीशन नोट कर लेंगे. वो पोजीशन P1 है और ये पोजीशन आपका L है कॉन्वेक्स लेंस. और P2 का पोजीशन को हमको सेट करना है कि नॉन पैरेलल देखकर अंदर से देखेंगे एंड वी कैन चेक. Yes, we have reached the non-parallel state. तो आपने देख लिया कि इसमें नॉन पैरेलल स्टेट आप जब सामने से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंस के अंदर लेंस आपको जब कैमरा से खींचा जा रहा है तो आपको हो सकता है पतले से दिखे होंगे, लेकिन सामने से देखेंगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा. तो जब आपको मिल जाएगा तो आप ऐसे करके आप U और V, ये आपका P2 पोजीशन होगा जहाँ पर नॉन पैरेलल स्टेट आया, तो P2 और L के बीच का डिफरेंस को आप V कहेंगे. ऐसे आप कई अलग अलग U लेते जाएंगे, हर बार V सेट करेंगे, तो कई इसको चेंज नहीं करेंगे पोजीशन, खाली पिन को और इन दोनों पिन को चेंज करेंगे. फर्स्ट पिन को अलग अलग चेंज करके आप अलग अलग U निकालेंगे और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आप V निकालने के लिए इसको चेंज करते जाएंगे, जिससे V अलग अलग है. अब 1/U और 1/V में ग्राफ खींचेंगे और वो ग्राफ आपको तो कुछ स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया, आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाया, और वो ग्राफ बिल्कुल क्लियर है कि 1/U और 1/V ग्राफ में जो है दोनों ही एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का वाई सबटेंड या एक्स एक्सिस में जो सबटेंड करेंगे दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, और जिससे वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1/f के इक्वल होगा. तो जब 1/f के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली हम उसको इन्वर्स कर देंगे तो मेरा फोकल लेंथ आ जाएगा. इस तरीके से बड़ी आराम से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. थैंक यू.